सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां किसानां दे नाल। एक पासे अंदोलन लगातार जारी है तो दूजे पासे गलबात दे लई भी कोशिशां हो रही ने। तो हुण सरकार ते किसानां विचाले गलबात दा राह पद्धरा हो गया है। 30 दिसंबर नूं नवें सिरे तो गलबात होवेगी, यानी कि कल नूं एक बार फिर तो गलबात होवेगी जो 8 दिसंबर तो बाद रुकी हुई सी। 25 दिनां दे बाद मुड़ तो गलबात शुरू होवेगी दोवां धिरां दे विचाले। 5 दिसंबर नूं अधिकारिक तौर ते मीटिंग हुई सी। उस तो बाद 8 दिसंबर नूं गृह मंत्री अमित शाह दे नाल बैठक हुई सी। तमाम बैठकां बेसिट्टा निकलियां ने, जिस तो बाद हुण अगली बैठक होण जा रही है। हालांकि किसानां दे वल्लों 29 दिसंबर की तरीक दी गई सी, पर उस तो बाद सरकार ने 30 दिसंबर की बैठक की गल आखी है, जिसनूं किसान जथेबंदियां ने भी कबूल कर लिया है। हुण इस तो भी वड्डी गल कि 4 मुद्दिआं ते भी गलबात लई सरकार तैयार है। दस दईए कि जो किसानां ने एक 4 सूत्री एजेंडा दिता सी, उस एजेंडे ते कहा सी कि जेकर सरकार गलबात करन दे लई राजी है तां असीं फिर ही अगे वधांगे। तां हुण सरकार उस एजेंडे ते भी गलबात करन दे लई तैयार है। ते कल दी बैठक तो जिथे पूरे देश के लोगों को उम्मीद है, उत्थे सरकार दी भी नजरां टिकियां हुईयां ने कि आखिरकार इस मसले का हल जल्द तो जल्द निकल जाए। तो सब दी नजरां कल दी होने वाली मीटिंग ते टिकियां हुईयां ने कि आखिरकार इस मसले का, इस रेड़के का हल निकले तो किसान भी आपो अपने घर वापस परत सकन। हालांकि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि कानून रद्द तो घट उन्होंने कुछ भी मंजूर नहीं है। फिलहाल कल की बैठक के विच की कुछ हुंदा है, लगातार नजर बनी हुई है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਡੈਡ ਲੋਗ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ 4 ਏਜੰਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, 2 ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਆਈ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੈਨਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸਨ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, 4 ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 30 ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। तो कल 11 बजे के करीब विज्ञान भवन दे विच किसानां ते सरकार दे विचाले बैठक होण जा रही है। इस मीटिंग दे विच की कुछ हुंदा है, इस ते सब दी नज़रां टिकियां हुईयां ने। इधर खेती कानूनां ते रेड़के दे विचाले खेतीबाड़ी मंत्री दा बयान आया है कि खेती सुधार कानूनां दे हक दे विच सी यूपीए सरकार। जी हां, नरेंद्र तोमर ने कहा कि मनमोहन सिंह ते शरद पवार भी सहमत सी, हालांकि दबाव नहीं चल सके यूपीए सरकार दे मंत्री, इसलिए जो कानून नहीं लिया सके तो दबा करके ही वो कोई फैसला नहीं ले सके। पर साडे कोल मोदी वर्गा मजबूत लीडर है ते मजबूत लीडर ते किसी दा दबाव नहीं पैंदा।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦੇ। सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति को हम जानते हैं। हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सूत्री कार्यक्रम है, देश का विकास और देश की जनता का कल्याण। कृषि समृद्ध हो और किसान की माली हालत सुधरे, इस एक सूत्री कार्यक्रम के प्रति हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह समर्पित है। और जब उद्देश्य परक समर्पण हो, देश परक समर्पण हो, तो फिर कोई भी ताकत अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नेता पर नहीं कर पाती। और जब मोदी जी पर इस प्रकार के तत्वों का कोई दबाव प्रभाव नहीं चलता, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना यह स्वाभाविक ही है। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत सिंह मान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मान साहब, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों के आंदोलन का लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया है, आज किस तरह से देखते हैं कि कैसे हल निकलेगा? क्योंकि अब किसानों ने जो पत्र भेजा है सरकार का, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। देखो, 1 महीने से ऊपर तो नेशनल मीडिया के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ तो वो जून से बैठे हैं। पंजाब में 5 जून को ऑर्डिनेंस आया था कैबिनेट में, और उसके बाद ट्रैक्टर मार्च, पंजाब बंद, भारत बंद, चक्का जाम, जितने भी उनकी मूवमेंट हुई, आम आदमी पार्टी गैर राजनीतिक रहकर उनका साथ दे रही है। जब से दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने स्टेडियमों को जेल में तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका हक है, और वो बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनका फैसला है। और जो भी वो फैसला लेते हैं वो समझदार हैं। ये सरकार क्या समझती है, ये भोले भाले किसान हैं। वो जो उनके जथेबंदियों के जो नेता हैं वो पढ़े लिखे हैं, 40-40 साल का उनका संघर्ष का तजर्बा है, वो कैसे भ्रमित हो सकते हैं? गैर राजनीतिक संघर्ष है, कोई पॉलिटिकल आदमी वहां जाता नहीं, तो विपक्ष ने कैसे भ्रमा दिया जी? भ्रमित सरकार है, जिनको ये पता नहीं चल रहा
खुद ही कह रहे हैं अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट का मतलब होता है कमियां मान रहे हैं, और खुद ही कह रहे हैं बहुत अच्छे कानून है। पहले झूठ बोलने से पहले मोदी जी पूरा कुनबा आपका जो है वो सलाह कर लिया करो पहले कि आज झूठ क्या बोलना है। पार्टी ने दिल्ली जो विधानसभा के अंदर वो ऑर्डिनेंस फाड़े, उससे क्या हल निकलेगा? कोई हल निकल क्योंकि जब केंद्र का कोई कानून है तो वो तो लागू ऑटोमेटिकली हो जाएगा, खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो फिर क्यों तो हम उनका साथ दे रहे हैं, हम जो वहां बैठे हैं उनका साथ दे रहे हैं। कानून तो केंद्र को वापस लेना पड़ेगा। यहाँ पे विधानसभा में कैप्टन साहब ने प्रस्ताव पास कर दिया इसके खिलाफ। इसका मतलब यहाँ पंजाब में कानून लागू नहीं हुआ। अगर लागू नहीं हुआ तो पंजाब के किसान वहां क्या कर रहे हैं? कानून तो सेंटर ही वापस लेगा, और हम उस सेंटर को बता रहे हैं कि राज्य सरकारें भी, जो बीजेपी सरकार तो नहीं करेगी ऐसा, जो बीजेपी के बिना सरकारें हैं वो आपके इस कानून का विरोध करते हैं। आप कानून वापस ले लीजिए, देश के लोगों की भावनाओं को समझिए। बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं ना कि आशंका के ऊपर आंदोलन हो रहा है, केवल आशंका है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन हुआ अभी कुछ भी नहीं। मैं बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहता हूं, किस दिन बहुत बड़ा देश में आंदोलन हुआ था कि जी ये बिल ले आओ, ये कानून बना दो, वरना किसान मर जाएगा, किसान नहीं बचेगा? कब? आम आदमी पार्टी तो लगातार विरोध कर रही है। राहुल गांधी कल विदेश रवाना हो गए हैं, कुछ दिन विदेश में रहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी से पूछिए, उनसे पूछिए कि विपक्ष में तो वो हैं। पार्लियामेंट में जिस दिन हमने विरोध किया सेंट्रल हॉल में, अधीर रंजन चौधरी वहीं थे, लोकसभा के जो उनके नेता हैं बंगाल वाले। गुलाम नबी आजाद वहीं थे जो राज्यसभा के नेता हैं, वो तो प्रधानमंत्री के साथ साथ चल रहे थे। अगर दिल में और जुबान पे सच्चाई है ना, एक ही बात है, तो वहां विरोध कर देते हमारे साथ। नहीं किया, बाहर जाके राष्ट्रपति को मिलते हैं, कोई वहां पे जंतर मंत्र पे बैठे हैं, सब ड्रामे कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कैप्टन साहब हैं ये उस हाई मेंबर कमेटी में शामिल थे, 2 लास्ट मीटिंग अटेंड की, वहां सहमति दी, और बाहर आके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अमित शाह को मिलने गए, कहते मैं तो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा था, किसानों की बात क्यों नहीं की? उसी दिन तो किसान लाखों की गिनती में पहुंचे हुए थे, मिल लेते उनको, नहीं मिलते। राजनीति की भेंट नहीं चढ़ रहा है किसान आंदोलन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसान जथेबंदियों का फैसला है और हम उसके समर्थक हैं कि वहाँ कोई भी एमपी या एमएलए या किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं जाके बोलेगा। बाहर से करो समर्थन, हमारे पास और भी मंच हैं, जैसे मेरे पास था सेंट्रल हॉल वाला, मैंने यूज किया। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में आएंगे किसी फंक्शन में तो उससे भी जबरदस्त विरोध करूंगा। मेरे पे जो मर्जी कार्रवाई कर लें, मैं एमपी बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। जब पैदा हुए थे तो बिरसे में बचपन में ट्रैक्टर, तवियां, हल, सुहागे और पीटर इंजन मिले थे। 40-40 फुट गहरे ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं। ना तो गहराई से डर लगता है ना ऊंचाई से डर लगता है। तो ये थे हमारे साथ भगवंत सिंह मान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है और आम आदमी पार्टी लगातार विरोध करती रहेगी और किसानों के पक्ष में है। कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 पंजाब, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों पुलिस नूं सख्त एक्शन के निर्देश दिते गए ने। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले कुछ दिनों च 1561 टावर प्रभावित हुए ने, जबकि 22 जिलों च 21,306 टावर ने। कैप्टन ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कोई भी एतराज नहीं है, पर सरकारी संपत्ति नूं नुकसान पहुंचाया जाए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या किसी भी चीज का नुकसान नहीं बर्दाश्त होगा। कैप्टन ने कहा बोर्ड के पेपर नेड़े आ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, तो कोविड करके कई मुलाजम घरों भी काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने काम से भी इसका असर पै रहा है। इन्नी ठंड च दिल्ली मोर्चे च बैठे किसानों के नाल हमदर्दी तो जताई है कैप्टन ने, पर कहा किसी को भी कानून हाथ च लैण का अधिकार नहीं है। तो लगातार सियासी लीडरां दे विरोध दा घिराओ दा सिलसिला भी जारी है। बीजेपी दे लीडरां तो बाद हुण अकाली दल दी वारी आई है। फतेहगढ़ साहिब च सुखबीर बादल दा विरोध होया है। लोकां ने कालियां झंडियां दे नाल इत्थे सुखबीर बादल दा विरोध कीता है। हालात इस तरह दे बन गए कि सुखबीर बादल नूं पिछले रस्तेओं कढना पिया। दरअसल फतेहगढ़ साहिब दे विच छोटे साहिबजादियां ते माता गुजर कौर दी लासानी शहादत नूं सिजदा करन दे लई गुरु घर च नतमस्तक होण दे लई पहुंचे सी सुखबीर बादल, पर इस दौरान कालियां झंडियां दे नाल लोकां दे रोस का सामना करना पिया। हंगामा हो गया जबरदस्त, लोकां ने नारेबाजी की। हालात बिगड़दियां देख सुखबीर दी गड्डी नूं पिछले रस्तेओं कढना पिया।
ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਗੋ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 5000 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ शिमला का रुख कर रहे हैं। न्यू ईयर को देखते हुए शिमला में पर्यटक जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। रिज मैदान पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की भीड़ है। काफी संख्या में यहाँ पर जो है पर्यटक पहुंचे हैं और जिस तरह से मौसम मेहरबान हुआ है, बर्फबारी हुई है, उसके बाद यहाँ पर आने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ पर जगह जगह से जो है लोग आ रहे हैं। कोरोना की पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हाँ, रात के समय जो कर्फ्यू लगता है रात को 10 बजे के बाद सुबह के 6 बजे तक, उसमें ये देखा जा रहा है कि न्यू ईयर पर ये पाबंदी रहेगी। होटलों में जो जश्न मनता है रात भर, वो इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में आपको जो है पर्यटक नजर आ रहे हैं और इससे न केवल जो पर्यटन कारोबार को लाभ होगा, बल्कि किसानों और बागवानों ने भी राहत की सांस ली है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18।